بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں آپ کے من پسند کوئی شو سوالوں کے سفر میں. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کی حسرت سب سے زیادہ ہوگی جس نے اللہ کی معصیت کر کے مال جمع کیا ہے. آئیے ملتے ہیں آج کے پہلے مسافر جناب ذکی عباس سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذکی عباس, کہاں تک پہنچی آپ کی پڑھائی؟ یہ 7th اسٹینڈرڈ کمپلیٹ ہوا ہے. 7th کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور پڑھ لکھ کر کیا بننا چاہتے ہو؟ آرکیٹیکچر. آرکیٹیکٹ بننا چاہتے ہو. اوہو, بلڈنگز میں انٹرسٹ ہے؟ جی. ماشاءاللہ. ڈیزائن ویزائن کرنے کا شوق ہے؟ جی. ڈرائنگ کا شوق ہے؟ جی. ویری گڈ, ماشاءاللہ. شروع کریں؟ جی. پہلا سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. امام علی علیہ السلام کے کس فرزند کی ولادت سن 3 ہجری ماہ رمضان میں ہوئی؟ اے امام حسن علیہ السلام, بی امام حسین علیہ السلام, سی حضرت عباس علیہ السلام, یا ڈی جناب محمد حنفیہ علیہ السلام؟ ڈی جناب محمد حنفیہ. جی. شور ہو؟ نہیں. 50-50. ہاں 50-50. آپ 50-50 یوز کرنا چاہتے ہو کیا 50-50 شور ہو؟ شور 50-50. 50-50 شور ہے. اور دوسرا 50 کدھر ہے؟ سی. یعنی آپ اس بات میں مطمئن ہو کہ نہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ماہ رمضان میں ہوئی ہے نہ امام حسین علیہ السلام کی. ماہ رمضان میں امام حسن علیہ السلام کی. اچھا, امام حسن علیہ السلام کی ولادت ماہ رمضان میں ہوئی ہے, یہ آپ کو پتا ہے؟ جی. اوکے, تو سوال بھی تو وہی ہے نا, ولادت سن 3 ہجری ماہ رمضان میں ہوئی ہے. بی امام حسن علیہ السلام. اوکے, آپ آپشن چھوڑ دو, آپ خالی مجھے بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کس کی ولادت ہوئی ہے ماہ رمضان سن 3 ہجری میں؟ بولو امام حسن علیہ السلام. امام حسن علیہ السلام, یعنی آپشن اے. اوکے, محفوظ کرے. جی. اوکے کمپیوٹر پلیز اے امام حسن علیہ السلام کو محفوظ کرے اور بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس, اے امام حسن علیہ السلام از دا رائٹ آنسر. ایک ٹھنڈی سانس بھر لو. تھوڑے گھبرائے ہوئے ہو, نروسنس ہے, کوئی بات نہیں, اتر جائے گی تھوڑے ٹائم میں. دوسرا سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. ان میں سے کس جگہ قرآن مجید میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت بیان کی گئی ہے؟ اے سورہ کوثر, بی سورہ دہر, سی آیت تطہیر, یا ڈی یہ سب؟ سی آیت تطہیر. جی. اس میں بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت بیان کی گئی ہے, آپ شور ہو؟ اور جناب سورہ کوثر, سورہ دہر, ڈی یہ سب. اگر تینوں میں ہے تو ڈی یہ سب آنسر ہوگا. ڈی یہ سب. تو آپ کو لگتا ہے سورہ کوثر میں بھی بیوی زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت بیان ہوئی ہے, اے سورہ دہر میں بھی ہوئی ہے, آیت تطہیر میں بھی ہوئی ہے؟ سی یا پھر بی. سی. لیکن سی اور بی اگر دونوں ہوگا تو پھر آنسر ڈی ہوگا. اگر سورہ دہر بھی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت میں ہے اور آیت تطہیر بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت میں ہے تو پھر آنسر تو پھر یہ سب ہوگا, چونکہ دونوں تینوں اس میں ہی کور ہو گئے. ڈی یہ سب. ڈی یہ سب. جی. محفوظ کرے. جی. اوکے کمپیوٹر پلیز ڈی یہ سب کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس, ڈی یہ سب از دا رائٹ آنسر. یہ تینوں سورے, 2 سورے اور ایک آیت کے اندر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت بیان کی گئی ہے. بہت کنفیوز چل رہے ہو, تھوڑے اسٹیبل ہو جاؤ چونکہ آگے کے سوال مشکل ہو گئے. تیسرا سوال
कंप्यूटर स्क्रीन पर, इफ यू हैव 1 करोड़ रुपीज, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो हाउ मेनी रुपीज डू यू हैव? 1 million, 5 million, 10 million, 1 1 billion? million. 1 billion? 1 million. 1 million. So 1 million translates into 1 crore? Yes. Sure? Yes. महफूज कर लूँ? जी. एकदम श्योर? पहली बार आपने ऐसा खुल के फट से जवाब दिया है. स्कूल में दोनों नंबरिंग सिस्टम से सिखाए हो गए? जी. यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s. 50-50. 50-50. ओके, तो आप डाउट में हो. ओके कंप्यूटर, हमारे दोस्त आपकी मदद चाहते हैं. वो चाहते हैं कि इन 4 जवाबों में से 2 गलत जवाब हटा दे. आपके रिमेनिंग ऑप्शंस है सी 10 मिलियन या डी 1 बिलियन. C 10 million. सी 10 मिलियन Yes. महफूज कर लूँ? जी. ओके कंप्यूटर, प्लीज सी 10 मिलियन को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं. यस, 10 मिलियन इज द राइट आंसर. यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़. यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन. गुड. एक लाइफलाइन गई, लेकिन लाइफलाइन आपकी मदद करने के लिए है. ओके, डोंट बी नर्वस व्हाइल यूजिंग योर लाइफलाइन. चौथा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, इनमें से कौन जालिम बादशाह अपने लश्कर के साथ दरियाए नील में गर्क हो गया? ए नमरूद, बी शद्दाद, सी शदीद या डी फिरऔन? D फिरौन. डी फिरौन? जी. श्योर? जी. महफूज कर लो? जी. ओके कंप्यूटर, डी फिरौन को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं. यस, डी फिरौन इज द राइट आंसर. उससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की कि आपका रिदम अब आ रहा है, जल्दी जल्दी जवाब आ रहे हैं. वेरी गुड. पांचवा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, इन नबियों को उनके जमाने के हिसाब से तरतीब दीजिए. ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम. आपके ऑप्शंस हैं सी बी ए और बी इज बी ए सी. ऑप्शन सी इज सी ए बी. ऑप्शन डी इज बी सी ए. B C A. आपके हिसाब से बी सी ए, यानी सबसे पहले आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, फिर उनके बाद आए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उसके बाद आए हजरत नूह अलैहिस्सलाम. जी. करेक्ट? जी. महफूज कर लूँ? लेवल 1 का आखिरी सवाल, पांचवा सवाल. अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप हमारे यहाँ लेवल 1 मुकम्मल कर जाओगे. आपको लगता है बी सी ए, यानी हजरत आदम के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और उनके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए. B A C. अब लगता है बी ए सी, यानी पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए. जी. यानी ये तो श्योर है सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए. जी. तो ऑप्शन जो 2 हो सकते, या बी सी ए हो सकता है या बी ए सी हो सकता है. जी. ओके, अभी आप जाना चाहते हो बी ए सी के साथ. जी. महफूज कर ले. जी. ओके कंप्यूटर, प्लीज बी ए सी को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं. यस, बी ए सी इज द राइट आंसर. बी ए सी इसका Right. सही जवाब है. पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, उनके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए और उनके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए. ओके जी. नाजरीन, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का. लेवल 1 मुकम्मल हो चुका है. हम इनका सफर आगे बढ़ाएंगे लेवल 2 में, इस ब्रेक के दूसरे हिस्से पे. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा जकी अब्बास ने 5 सवालों के सही जवाब दिए थे. एक लाइफलाइन भी यूज की है, 2 लाइफलाइन अभी महफूज है. आइए देखते हैं इनका सफर लेवल 2 में. रेडी? जी.
छठा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये एक ऑडियो है, आपको बताना है कि ये कौन से सूरे की आयत है। कंप्यूटर प्लीज प्ले दी ऑडियो। इन्नल इंसान लफी खुस्र। आपके ऑप्शंस है ए सूरे आदियात, बी सूरे तकासुर, सी सूरे वल अस्र और डी सूरे हुमज़ा। डी। डी सूरे हुमज़ा जी। महफूज कर लूं? जी। श्योर? जी। 100%? एकदम इंस्टेंटली आपका जवाब आया है, महफूज कर लूं? जी। एक बार पढ़ना चाहोगे, मन में दोहराना चाहोगे? अक्सर लोग 2 या 3 बार तो ऑडियो सुन ही लेते हैं पार्टिसिपेंट्स, आपको सुनना है एक और बार? जी। कंप्यूटर प्लीज प्ले दी ऑडियो। इन्नल इंसान लफी खुस्र। हमें कोई जल्दी नहीं है, आप इन चारों सूरों की तिलावत कर सकते हो अपने मन में, श्योर हो जाओ कौन सा सही सूरा है। फ्लिप। फ्लिप कर दे? जी। सवाल रद्द कर दे? जी। ओके कंप्यूटर, हमारे दोस्त आपकी मदद चाहते हैं, जकी चाहते हैं कि आप इस सवाल को रद्द कर दें। ओके, ये सवाल रद्द हो गया, लेकिन अगर आपको इसका जवाब देना होता तो आप क्या देते हैं? डी। डी सूरह हुमज़ा चेक करें। जी। कंप्यूटर प्लीज हमें बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है सी सूरह अस्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कोई बात नहीं, लाइफलाइन इसी पर्पस के लिए रहती है। आइए फ्लिप किया हुआ छठा सवाल देखते हैं। उस पुल का क्या नाम है जो जहन्नुम के ऊपर बनाया गया है, जिस पर से तमाम लोगों को गुजरना होगा? ए मीज़ान, बी ज़मान, सी सिरात या डी मकान? सी सिरात। सी सिरात जी। महफूज कर लें? जी। ओके कंप्यूटर प्लीज सी सिरात को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है, माशाल्लाह। 6 सवाल हो गए, 9 बाकी है, एक लाइफलाइन अभी भी मौजूद है। 7वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फदक अपनी जिंदगी में किस बीबी को हिबा फरमाया? ए जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा, बी जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, सी जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा या डी इनमें से कोई नहीं। हिबा यानी गिफ्ट। रसूल खुदा ने अपनी जिंदगी में फदक किस बीबी को गिफ्ट किया था? सी। सी जी। बी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जी। महफूज कर ले? जी। ओके कंप्यूटर प्लीज सी बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है, माशाल्लाह। 7 सवाल हो गए, 8 सवाल बाकी। 8वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। जनाब सुलेमान नबी खुदा किस नबी के वारिस करार पाए? जनाब सुलेमान नबी खुदा किस नबी के वारिस करार पाए? ए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम या डी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। इन शॉर्ट जनाब सुलेमान किस नबी के वसी थे? नेक्स्ट। अभी आपने सवाल बताया था ना, हज़रत आदम के बाद उनके बेटे जनाब शीश और उनकी नस्ल में आए जनाब नूह, ओके, और उनके बाद उनकी कई नस्ल में आए जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे जनाब इस्माइल। वैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहले कौन थे? किसके वारिस बने जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम? क्या वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे? क्या वो जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम थे? क्या वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम थे? क्या वो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम थे? 8वां सवाल
तकरीबन आधे रास्ते पे है हम लोग। डबल फ्रीज। ओके कंप्यूटर, हमारे दोस्त आपकी मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें अलाउ करें कि वो 2 जवाब को महफूज करें। ओके, पहला किसे महफूज करेंगे? ए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। डी। पहला कौन सा? ए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। जी। चेक कर लूं? जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज हमें बताइए, क्या ए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इसका सही जवाब है? अभी आपको इन 3 जवाबों में से बताना है कि सही जवाब कौन सा है। क्या वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस करार पाए? क्या वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वारिस करार पाए? क्या वो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के वारिस करार पाए? बेसिकली आपको बताना है वो किसके बेटे थे। चलो और आसान कर दिया। बी। बी। जी। अगर आप सीरियल ऑर्डर में जा रहे हो ए बी सी डी, तो इसके बाद ऑप्शन नहीं बचेंगे, 2 ही फ्रीज कर सकते हैं। जी। महफूज कर ले। जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज बी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को महफूज करें। कितने % श्योर हो? 50। 50% श्योर हो? जी। और दूसरे 50 किधर है? दूसरा डी। डी। हाँ, आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट भी यही था कि हजरत इदरीस और हजरत याह्या को महफूज करते हैं। बहरहाल आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी महफूज किया है। कंप्यूटर प्लीज हमें बताइए, क्या इसका सही जवाब बी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है? और ये बिल्कुल सही जवाब है। 8 सवाल हो गए, 7 सवाल बाकी। आधे से ज्यादा कुछ सफर कट गया, आधे से कम कुछ अभी बाकी। बहरहाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के 10 बेटे थे। उन 10 बेटों में से उनको चूज करना था, और जनाब सुलेमान जो सबसे छोटे बेटे थे वो सिलेक्ट हुए थे। और बहुत दिलचस्प वाकया है वो भी, कभी वक्त मिले तो पढ़ लेना उसे। जी। ये रहा 9वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रोज़ा मुक़द्दस किस शहर में मौजूद है? आपके ऑप्शंस है ए कुम, बी मशहद, सी सामर्रा या डी काज़मैन। ए कुम। आपको लगता है ये जो रोज़ा मुक़द्दस है ये कुम में है? यानी अभी तो लाइफलाइन भी नहीं है, अभी सिर्फ दिल की सुनो। जी। ए कुम। ए कुम जी। महफूज कर ले। जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज ए कुम को महफूज करें। किसका रोजा लग रहा है ये? नहीं पता? तो फिर ए कुम क्यों महफूज किया? पता नहीं। पता नहीं, बस दिल बोल रहा था ए ले लेते हैं। जी। और दिल ने गलत बोल दिया तो वेरीफाई कर लूं? ज़की अब्बास साहब, ना कोई लाइफलाइन मौजूद, ना कोई हेल्प। आपके चेहरे से साफ जाहिर है कि आप बड़ी दुविधा में हो। आपने एक कुम को महफूज कराया है। जी। आप इजाजत दो तो मैं वेरीफाई कर लूं? जी। वेरीफाई कर लूं? एक बार ऐसा कॉन्फिडेंटली मुझे बोल दो तो मैं करूंगा। अभी भी स्विच करना है तो कर लेंगे। बी मशहद। बी मशहद? जी। ओके कंप्यूटर, हमारे दोस्त चाहते हैं कि आप ए कुम के बदले बी मशहद को महफूज करें। वेरीफाई कर लूं? जी। और हमें बताइए, क्या बी मशहद इसका सही जवाब है?
کا صحیح جواب ہے سی، سامرا۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا روضہ ہے، اور یہیں پر امام علی النقی علیہ السلام کا بھی روضہ ہے۔ تو ذکی عباس، 9ویں سوال پہ ہمارا سفر مکمل ہو گیا۔ آپ نے لیول 1 مکمل کیا، یہ رہی آپ کی انعامی رقم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آنے والے سیزنز میں ہمارا فارم ضرور بھرو گے اور اس ادھورے سفر کو تب مکمل کرو گے۔ ناظرین، اب وقت ہو چکا ہے کہ ہم آپ سے بھی اجازت لیں۔ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اگلے ہفتے ایک اور نئے مسافر کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون۔